آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے ضلع مستونگ کے مقام بی این پی کے دھرنے کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق تلاشی لینے کے دوران مشکوک شخص نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے کی زوردار آواز کچھ علاقوں میں سنی گئی۔ خودکش دھماکے کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کے حوالے سے کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کہا کہ بلوچستان حکومت واقعے کی مکمل چھان بین کر رہی ہے۔ لوگ پاس خودکش دھماکے کے مقام سے قریب بلوچستان نیشنل پارٹی کا دھرنا جاری تھا۔ سردار اختر مینگل اور بی این پی کی تمام سیاسی قیادت اور شرکاء محفوظ ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ بلوچستان حکومت گزشتہ رات سے بی این پی کی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ بی این پی کے وفد کی گزشتہ رات انتظامیہ سے ملاقات بھی ہوئی۔ آج حکومتی وفد نے سردار اختر مینگل سے ملاقات پر اتفاق کیا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کی سربراہ سردار اختر مینگل نے کہا کہ خودکش حملے سے حوصلے پست نہیں ہوں گے، دھرنا جاری رہے گا۔ مستونگ میں دھرنے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اختر مینگل نے کہا کہ راستے کھلے ملے تو دھرنا کوئٹہ ہوگا۔ اختر مینگل نے کہا کہ ہم ایسے حالات سے گزر چکے ہیں، ہمارے حوصلے پست نہیں بلند ہیں۔ عید الفطر کے مناسبت سے پاکستان ریلوے کی جانب سے چلائی گئی عید اسپیشل ٹرین کوئٹہ سے روانہ ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد کئی دن ٹرین سروس معطل رہنے کے بعد اب گزشتہ روز شروع ہوئی تھی۔ آج عید اسپیشل ٹرین بھی سخت سیکیورٹی میں کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ کر دی گئی ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق 9 بوگیوں پر مشتمل عید اسپیشل ٹرین 400 مسافروں کو لے کر پشاور کے لیے روانہ ہوئی۔ ٹرین کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف عید کے بعد 10 اور 11 اپریل کو یورپی ملک بیلاروس کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف روسی صدر کے درمیان باضابطہ مذاکرات ہوں گے۔ سرمایہ کاری، معاشی تعاون، تجارتی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں ٹریکٹر سازی سے متعلق تعاون پر بات ہوگی۔ روسی صدر سے یوکرین اور روس تنازع سمیت امن و امان کی سلامتی پر بات ہوگی۔ وزیراعظم کے دورے سے پہلے اعلیٰ سطح وفد بیلاروس جائے گا۔ وفاقی وزیر علیم خان 3 اپریل سے وفد کے ہمراہ بیلاروس جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا دوسرا اجلاس بہتر مانیٹرنگ کو یقینی بنانے کے لیے دھماکہ خیز مواد کو وفاقی سبجیکٹ بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے ذریعے افغان حکومت کے سامنے دہشت گردی کے مسئلے کو اٹھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم، آرمی چیف اور اسٹیک ہولڈرز ایک صفحے پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ صوبائی سطح پر محکمہ کاؤنٹر ٹیررزم فعال کیا جانا انتہائی ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو چیلنجز کے پیش نظر ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ وفاقی سطح پر ایف آئی اے کے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کو مکمل فعال کیا جائے گا۔ تمام ادارے غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کے قیام پر کام جاری ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا کہ بھارت انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی کرنے والا ملک ہے۔ لوک سبھا میں لوگ بھارتی خارجہ امور کے ریمارکس پر ترجمان دفتر خارجہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اقلیتوں کے حقوق کی حمایت کرنے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں ریاستی ادارے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے سرگرم ہیں۔ بھارت میں اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے واقعات حکومتی ملی بھگت سے ہو رہے ہیں۔ وہاں اقلیتوں کے خلاف نفرت اور تشدد کو منظم طریقے سے فروغ دیا جاتا ہے۔ بھارت امتیازی شریعت، ترمیمی قانون سے لے کر گھروں کو بلڈوز کرنے تک میں ملوث ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت میں بابری مسجد کی شہادت اور اس کی جگہ مندر کی تعمیر اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت میں مساجد اور درگاہوں پر حملے معمول بن چکے ہیں۔ بھارت کو مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ بھارتی اقلیتوں کے حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ وہاں مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بھارت اپنے جرائم پر پردہ ڈال کر دوسروں پر بے بنیاد الزامات لگاتا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوام دوست اقدام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عید پر زیادہ کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹر کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مقرر کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی کمشنرز زائد کرایوں کی وصولی روکنے کے لیے مانیٹرنگ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گھروں کو لوٹنے والے غریب مسافروں کے استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے گی۔
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कालाबाग डैम का भी लोग कहते थे बन रहा है, अब यही सूरत हाल चोलिस्तान कैनाल पर की जा रही है। कराची के सहाफियों से गुफ्तगू में कहा गया कि इस वक्त पाकिस्तान मुल्क में सबसे अहम पानी का मसला है। इंडस रिवर सिस्टम में पानी की कमी का मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। वजीर आला सिंध ने कहा कि कुछ दिन बाद पंजाब हुकूमत एक कैनाल निकालने की तजवीज देती है। चनाब दरिया से पानी लेंगे, चोलिस्तान कैनाल बनाने का कहा, जिस पर हमें एतराज है। उनका कहना है कि अगर इनके पास 27 MF पानी डेल्टा जा रहा है तो हमारा डेल्टा सरसब्ज होना चाहिए। एकिंग में 6 कैनाल का प्रोजेक्ट लाया गया, जिसमें हमने एतराज किया। इस के इस मंसूबे पर हमने CCI में भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। हमने सिंध असम्बली से इन कैनाल्स के खिलाफ करारदाद मंजूर की। ये मामला एकिंग में मौजूद है, हम इसकी वहाँ भी सख्त मजम्मत और मुखालफत करेंगे। ये मामला हमारे कंट्रोल में है, हम नहीं बनाने देंगे। हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ताकत और हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में ऑयल रिफाइनरी के करीब लगने वाली खौफनाक आग पर कई घंटों बाद भी ताहाल काबू न पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग मुबैना तौर पर गैस पाइपलाइन में लगने के बाइस फैली, ताहम हतमी वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। ताहाल किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। ताहम आग के बायस करीबी इलाकों में धुआं फैल चुका है, जिससे मकामी रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है। फायर फाइटिंग ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद नुकसान का दुरुस्त तखमीना लगाया जा सकता है। फायर ब्रिगेड ने उसे तीसरे दर्जे की आग करार दिया है। पुलिस हुकाम ने तस्दीक की है कि आग ऑयल रिफाइनरी से दूर लगी है, जबकि सुई सदवन कामला भी मौके पर पहुंच गया। फायर ऑफिसर मोहम्मद जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आग बुझाने के लिए शहर भर से टेंडर तलब कर लिए गए हैं। पानी की पाइपलाइन की बोरिंग के दौरान गैस लाइन को नुकसान पहुंचा। आग पुरअसरार है, ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी लाइन मुतासिर हुई है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹1 की मामूली कमी का ऐलान कर दिया। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बड़ी कमी हुई, जो अवाम तक मुंतकिल ना हो सकी। हुकूमत की जानिब से मुल्क में आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई, ताहम हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखी गई। वजारत खजाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद नई कीमत ₹254.63 फी लीटर होगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत बदस्तूर ₹258.64 फी लीटर पर बरकरार है, जबकि हाई स्पीड डीजल समेत दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टैक्स खसारा बढ़ने से पाकिस्तान की IMF को दी गई यकीन दहानी नाकाम हो गई है। IMF से मुआहिदा खतरे में पड़ गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज गई। IMF से मुआहिदा नाकाम होने का खदशा बढ़ने लगा। रिफंड सुस्त होने के बावजूद रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह के दौरान टैक्स शॉर्टफॉल 730 अरब रुपए रहा। सिर्फ मार्च के महीने में टैक्स खसारे में 100 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जिससे पाकिस्तान की IMF से कमिटमेंट खतरे में पड़ गई है, जिसमें पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई थी कि असल हदफ के मुकाबले में टैक्स खसारा 640 अरब रुपए से जायद नहीं होगा। टैक्स हुकाम के मुताबिक FBR ने मार्च के आखिरी वर्किंग डे तक 8000 अरब से जायद का टैक्स जमा किया है। ये वसूली अगरचे गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 28% ज्यादा है, लेकिन हदफ को हासिल करने के लिए काफी नहीं। गुज़श्ता जुलाई तक मार्च का हदफ 9000 अरब रुपए से जायद मुकर्रर किया गया था, जबकि जमा किए गए महसूलात हदफ से 730 अरब रुपए कम है। FBR ने रिफंड्स की मद में 34 अरब रुपए जारी किए हैं, जो कि गुज़श्ता साल की इस मुद्दत के मुकाबले में 52% कम है। 9 माह के दौरान 384 अरब रुपए के रिफंड्स दिए गए हैं, जो कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में महज 6 अरब रुपए जायद है। जुलाई तक मार्च के दौरान FBR सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी के अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा, लेकिन इनकम टैक्स हदफ से जायद जमा कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आबादी के लिए मिलने वाला NFC अवार्ड में हिस्सा न मिलने पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को खत लिख दिया। अली अमीन गंडापुर ने खत में लिखा कि 2018 में साबका कबायली इजला को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया। जम इजला के इंजमाम से सूबे की आबादी में 57 लाख लोग आए और इजाफा हुआ, जिसमें अभी तक इस आबादी के लिए NFC अवार्ड में हिस्सा नहीं मिल रहा। उन्होंने मजीद लिखा कि साबिक फाटा का शेयर विफाकी हुकूमत को मिल रहा है, जो गैर आईनी है। माली वसाइल की तकसीम के लिए 10वां NFC अवार्ड जल्द बुलाया जाए।
مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ امید ہے صدر مملکت وزیر اعلیٰ کے پی کے خط کا مثبت جواب دیں گے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ اگر وفاقی حکومت امن و امان کے مسئلے میں واقعی سنجیدہ ہے تو NFC اجلاس جلد از جلد بلایا جائے، کیونکہ امن و امان کا قیام صرف سنجیدہ اقدامات سے ممکن ہے۔ تنظیم سازی کے ماہر کسی وزیر کی غلاظت بھری پریس کانفرنسز سے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی اضلاع کی ترقی پورے ملک میں امن و امان کے قیام میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے وفاق ایک طرف KP کو دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے جبکہ دوسری طرف فنڈز روک کر رکھے ہوئے ہیں۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے واضح کیا کہ غیر آئینی طور پر وفاق کا فنڈ روکنے سے ضم شدہ اضلاع میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، جبکہ ان اضلاع میں اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، لہٰذا فنڈز بھی صوبے کو ہی ملنے چاہیے۔ مشیر اطلاعات نے مزید کہا کہ صوبہ وفاق کے مقابلے میں زیادہ مؤثر انداز میں ضم شدہ اضلاع کے فنڈز استعمال کر سکتا ہے۔ اگر وہاں ترقیاتی عمل تیز کیا جائے تو دہشت گردی میں واضح کمی لائی جا سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے کہا کہ لگتا ہے علی امین گنڈا پور کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا تحریک انصاف اور JUI میں خلیج علی امین گنڈا پور کی پیدا کردہ نہیں، بانی PTI اور مولانا فضل الرحمان کے بیانات سے خلیج پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان کیوں ایسے اتحاد کا حصہ بنیں گے جس سے فائدہ PTI کا ہو؟ لگتا ہے علی امین گنڈا پور کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ PTI رہنما نے مزید کہا کہ دہشت گردی پہلے ضم اضلاع میں تھی، اب کرک کو ہارٹ میں بھی لپیٹ میں لے لیا۔ دہشت گردی کا خاتمہ وفاق اور صوبے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ اس KP میں پارٹی صدور بنے تھے یہ پہلے بھی صدور رہ چکے ہیں۔ ان پارٹی صدور کو علی امین گنڈا پور نے ہٹایا تھا جو اب پارٹی صدور بنائے گئے۔ لگتا ہے کہ بانی PTI کو بھی آن بورڈ رکھا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا۔ جو لوگ تحریک انصاف میں آج ہیں وہ اس کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں، وہ بانی PTI سے بددیانتی یا بے وفائی نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق بانی PTI سے ملاقات ہمارا حق ہے۔ بانی PTI سے ملاقات کے حوالے سے ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ PTI میں کوئی کشمکش نہیں، بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہر دفعہ ان کا نام شامل ہو۔ بانی PTI ہم سے مشاورت کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کس سے ملنا چاہتے ہیں۔ بابر اعوان کا نام میں نے نہیں نکالا، ان کا نام اگلے ہفتے کی لسٹ میں شامل نہیں تھا۔ جیل کے معاملات چودھری ظہیر عباس ایڈوکیٹ، فوجداری مقدمات سلمان صفدر، جبکہ آئینی نوعیت کے معاملات کے حوالے سے میں بھی شامل ہوں۔ وزیر اعلیٰ KP کی پرفارمنس ٹھیک ہے۔ بانی PTI نے مجھے کہا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں کہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور کا عہدہ مستحکم ہے۔ بانی PTI کا اعتماد ان کو حاصل ہے۔ JUI سے ہماری اتحاد کی کوشش موجود ہے، بڑی حد تک ہم اس اتحاد کی جانب بڑھ چکے ہیں۔ بہت بڑا اتحاد بن رہا ہے جو سامنے آ جائے گا۔ بانی PTI کی واضح ہدایت ہے کہ JUI سے گفتگو جاری رکھی ہے۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ بانی PTI کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ان کا دور حکومت اچھا نہیں تھا۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں بزدار کی حکومت کرپٹ ترین حکومت تھی۔ خیبر پختونخوا میں 12 سال سے کرپٹ ترین حکومت چل رہی ہے۔ وفاق میں PTI نے 4 سال میں 1 پیسے کا کام نہیں کیا۔ حکومت کا معیشت کو سنبھالنے کا دعویٰ غلط ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ پاکستانی معیشت کی گروتھ آج بھی منفی ہے، قرضے لینا کوئی کامیابی نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو PTI کے حوالے سے تحفظات ضرور ہیں۔ اپوزیشن کے لوگ ایک دوسرے پر تنقید کریں گے تو معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ انہوں نے مزید کہا کہ علی امین گنڈا پور پر ذاتی حملے کریں گے تو ماحول خراب ہوگا۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس ڈیرہ غازی خان نے خیبر پختونخوا بارڈر پر واقع سرحدی چوکی لکھانی پر خارجی دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ دہشت گردوں نے یہ کارروائی کس طرح کی اور سیکیورٹی فورسز نے کس طرح یہ حملہ ناکام بنایا، اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پولیس نے عید الفطر کی آمد سے قبل امن و امان اور سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی کوششیں مزید تیز کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں پنجاب پولیس ڈیرہ غازی خان نے خیبر پختونخوا بارڈر پر واقع سرحدی چوکی لکھانی پر خارجی دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق لکھانی چیک پوسٹ پر 20 سے 25 خارجی دہشت گرد چاروں اطراف سے حملہ آور ہوئے۔ حملہ آوروں نے مارٹر گولے، راکٹ لانچر اور سنائپر رائفلز اور دیگر بھاری اسلحے کا استعمال کیا۔ پولیس ایلیٹ فورس اور SOU
के बहादुर जवानों ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए चेक पोस्ट का दिफा किया और दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी होने की इत्तलात है। पुलिस के तमाम जवान इस हमले में महफूज रहे, जो कि फोर्स की पेशा वराना महारत और मुस्तैदी का सबूत है। दूसरी जानिब आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने डेरा गाजी खान पुलिस को दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी और मुस्तकबिल में भी ऐसे ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दिया। आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने ऑपरेशन की निगरानी की, जबकि डीपीओ डेरा गाजी खान सैयद अली की क़यादत में QRF टीमों ने बरवक्त कार्रवाई की। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है और पुलिस टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि मुमकिन खतरात का सद्देबाब किया जा सके। बलूचिस्तान के इजला, कच्ची और मूसाखिल में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रकों के सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर कच्ची की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक महकमे दाखिला बलूचिस्तान के अहकामात की रोशनी में गुज़िश्ता रोज से ही सिब्बी से क्वेटा जाने वाली ट्रैफिक को शाम 5 से सुबह 5 बजे तक रोक लिया गया और उधर लोरा लाई से डेरा गाजी खान जाने वाली तमाम ट्रैफिक को शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक किंगरी के मकाम पर रोक लिया जाएगा। बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फायरिंग और मुसाफिरों को कत्ल करने के वाक़यात के बाद यह फैसला किया गया। मोटरवे पुलिस साउथ जोन ने ईद के मौके पर मुसाफिरों से जायद किराया वसूली के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। डीआईजी मोटरवे पुलिस असगर अली यूसुफजई ने कहा कि कार्रवाइयों में अब तक 9 लाख रुपए से जायद मुसाफिरों को वापस किए जा चुके हैं। डीआईजी मोटरवे पुलिस ने कहा कि बस मालिकान को 8 लाख रुपए से जायद के जुर्माने भी किए गए। जायद किराया वसूल करने वाली कंपनियों के रूट परमिट मनसूख किए जा रहे हैं। मुसाफिर हेल्पलाइन 130 पर जायद किराए की वसूली के लिए शिकायत दर्ज करवाएंगे। ओवरलोडिंग और जायद किराया वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुसाफिरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मोटरवे पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कहना है कि मैदान में टीम वर्क का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी नाकाम नहीं होते। लाहौर में चेयरमैन पीसीबी ने आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए तैयारी करने वाली पाकिस्तान विमेन टीम के कैंप का दौरा किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों की तैयारी के हवाले से अपडेट्स ली और खवातीन खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन देखा। उन्होंने तरबियती कैंप में प्लेयर से मुलाकात की। खिलाड़ियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि उम्मीद है आप बेहतर खेल का मुजाहरा करेंगी, क्वालिफायर में फाइटिंग स्पिरिट के साथ उतरेंगी। गजा के मुख्तलिफ हिस्सों पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजराइल की शदीद बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर चुकी है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक इजराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि खान यूनिस के शोहदा में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ इजराइल ने गजा की मार्केट समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमला करके मज़ीद 40 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। गजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली जारहियत के नतीजे में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई है। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के बायस हलाक अफराद की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले से 2000 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। खबर एजेंसी का बताना है कि रेस्क्यू टीमें मलबे में दबे अफराद को निकालने में मसरूफ़ हैं, जबकि अमरीकी एजेंसी ने ज़लज़ले में 10,000 से ज़्यादा अफराद की हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार के दूसरे बड़े शहर मंडाले में आने वाला ज़लज़ला इस कदर शदीद था कि इस झटके 900 किलोमीटर दूर तक थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में भी महसूस किए गए, जहां मुतअद्दिद तामीराती स्ट्रक्चर और इमारतें मुनहदम हो गईं। ज़लज़ले के झटके भारतीय रियासतों मेघालय और मणिपुर, बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका और चीन में महसूस किए गए। बैंकॉक का कहना है हुक्काम का कहना है कि उन्हें तामीराती स्ट्रक्चर में क्रैक्स पड़ने की 2000 से ज्यादा रिपोर्ट्स मौसूल हुई। एक ज़ेरे तामीर बुलंद इमारत गिरने से 10 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा मजदूर लापता हैं। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से वॉइस ऑफ अमेरिका की बंदिश के फैसले को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक न्यूयॉर्क की अदालत के फैसले के तहत वॉइस ऑफ अमेरिका के 1200 से जायद सहाफ़ियों और मुलाजमीन की नौकरियां बहाल कर दी गई हैं। अमरीकी अखबार का यह भी कहना है कि जज ने हुकूमत को वॉइस ऑफ अमेरिका को तहलील करने या उसके अमले को बरतरफ करने से रोक दिया है। ताहम जज ने वॉइस ऑफ अमेरिका की बहाली के हवाले से कोई हिदायत जारी नहीं की। ट्रंप इंतजामिया ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 7 वफाकी इदारे खत्म करने का हुक्म दिया था, जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका भी शामिल था। अदालती फैसले ने ट्रंप इंतजामिया के इस इकदाम को गैर माकूल करार देते हुए रोक दिया है।
और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। अगर शौहरी मुआहदा ना किया तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरान की जानिब से जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के हवाले से खत के जवाब पर अमेरिकी सदर ने रद्द अमल देते हुए कहा कि अगर ईरान जौहरी मुआहदा करने में नाकाम रहा तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बताया कि मैंने हाल में ही ईरान को एक खत भेजा है जिसमें कहा कि आपको फैसला करना होगा, या तो हमें बैठकर बात करनी होगी या फिर बुरा होगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी तरजीह है कि हम ईरान के साथ मामला हल करें, लेकिन अगर हम इसे हल ना कर सके तो ईरान के लिए बहुत बुरी चीजें होने वाली हैं। अब बात करें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी वनडे सीरीज की, जिसका आगाज भी मायूस कुन रहा। शाहीनों को पहले मैच में शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले वनडे मैच में 73 रन से शिकस्त दे दी है। मेजबान न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम 271 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज ओपनर अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान ने किया। ताहम ओपनिंग पार्टनरशिप टीम के लिए ज्यादा रन बनाने में नाकाम रही। उस्मान खान 39 और अब्दुल्ला शफीक 36 रन पर कीवीज बॉलर का शिकार हो गए। कौमी टीम के बैट्समैन बाबर आजम जिम्मेदाराना बैटिंग की। बाबर आजम 83 गेंदों पर 78 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मार्क चैपमैन ने 132 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 13 चौके और 6 छक्के शामिल थे। न्यूजीलैंड को 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर उमर गुल बांग्लादेश क्रिकेट के टीम के बॉलिंग कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बॉलिंग कोच की तलाश है। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल जिम्मेदारियां संभालने के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर शॉन टेड भी दौड़ में शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि बीसीबी मौजूदा कोच आंद्रे एडम्स की जगह नए बॉलिंग कोच की तकर्री करना चाहता है। कोच आंद्रे एडम्स की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया जा रहा। न्यूजीलैंड के साबिक फास्ट बॉलर का फरवरी 2026 तक मुआहदा है। उमर गुल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग का तजुर्बा रखते हैं और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं। शॉन टेड भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। अब बात करें कराची के मौसम की, तो आपको बताएं महकमा मौसमियात ने ईद के दिनों में कराची का मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में ईद के दिनों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। सुबह में शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं, जबकि शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है। शहर कायद में 4 अप्रैल से दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सर्द है तो कहीं गर्म खुश्क है, लेकिन अगर बात की जाए मुल्क के बालाई इलाकों और आज़ाद कश्मीर की तो वहां शदीद सर्दी पड़ रही है। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के तमाम सूबों में मौसम के मुख्तलिफ बदलती सूरत हाल, कहीं सर्दी है तो कहीं मौसम गर्म और खुश्क है और कहीं बारिश ने अपना रंग जमाया हुआ है। आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश होने से मौसम सर्द हो गया है। वादी लीपा और वादी नीलम के बाला इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। बारिशों से शरह कराकरम, कोहिस्तान और दियामीर में मुतादिद मकामात पर बंद हो गई है। मरी और गलियात में शदीद सर्दी है। छांगा गली में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात तक पहुँच गया है, जबकि अपर चित्राल में 3 रोज बाद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। बालाई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने से मुतादिद मकामात पर सड़कें बंद हो गई हैं।